बट मीनवाइल हम चीजें देख लेते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को एक्सेप्ट करने में बार बार मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, we talked about these functions, जिसमें हमारा we started with HR planning and then we moved towards recruitment. Selection पे अभी हमने ज्यादा बात नहीं की थी. Today we are going to touch the recruitment and selection part, but abhi we are still left with one or two analysis of human resource planning. ठीक है? And then we went to this analysis, skill inventory, in which we applied different filters, and then we came down to a few people जिसको हम shortlist कर रहे थे based on their skills. Then we talked about this replacement chart. That if we have this kind of chart, it is going to make us make things for us very easy कि किसको promote करना है in case of certain situations or otherwise. But we need to have a data behind this chart. Then we talked about trend analysis, that what has been happening in the past, based on that data, we predict future, that what are we going to do in the future. Then we went towards succession planning का concept, कि वो mainly family businesses इनके लिए हो रही होती है. Then we talked about this correlation analysis or the projected analysis. इसको भी हमने उसमें देखा. Last thing I think which we were doing was the regression analysis. So based on this regression analysis, we came to this conclusion that if you have number of factors in order to determine the number of employees that you need, then you can use this regression analysis. And then we did the vacancy analysis, in which we were trying to calculate this turnover, and then how many vacancies at which level will be available in the next year. So this is what we were talking about. Now the next thing which we will be analyzing is the personal ratio analysis. Personal ratio analysis. Now, before we go for the analysis of this personal ratio analysis, we need to have a clear idea that what do we mean by this personal ratio analysis. Now, when we go towards recruitment, the part from recruitment to selection will be done through this ratio analysis. Now, how do we go from recruitment to selection part? First of all, recruitment, we said that it is a creation of pool of potentially capable candidates. See, creation of pool. मतलब आपके पास एप्लीकेशन जब आ गई तो आपकी रिक्रूटमेंट खत्म होगी. The next part in which we start analyzing the CVs and everything, that is the selection part. अब जरा selection की definition पहले लिख लें, and then we will see कि selection होती क्या है actually. The shortlisting and screening down. The shortlisting and screening down हमारे पास पूल बन गया. पूल बनने के बाद the shortlisting and screening down of recruited candidates in order to reach to the best ones. So again, the shortlisting and screening down of recruited candidates in order to reach to the best ones.
For example, if we received 200 applications and we need 20 people, how are we going to decide that out of this 200 people pool, which 20 are the best ones? So we are going to hire them. So that is a process of selection. Now, how do we do the selection? Is that we use predictors. Selection mein we use the predictors. Now, let's suppose we are here. We have this funnel down approach when we go for selection. And suppose you have 200 applicants who are here. This is a potentially capable pool that you've created. Now, predictor. The first predictor is, for example, you're going to look at the CVs of these 200 people, and suppose your first criteria of shortlisting or screening down is that if the CVs match the requirement that you've asked in your advertisement or in your job ad. That is one predictor. Now, suppose 20 people out of 200 people did submit the application, but somehow you do not shortlist them because of their credentials or because of their experience or because of their qualification. So we are left with 180 people. We are left with 180 people. हुआ क्या? हमने पहला प्रेडिक्टर यूज किया कि हमने सीवीज को सिफ्ट कर लिया, SIFT सिफ्ट कर लिया, और उसमें से हमें पता चला 20 लोग जो है ना, इनको आगे फॉरवर्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट मीट द फर्स्ट क्राइटेरिया, व्हिचएवर इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया. नाउ व्हाई डू वी कॉल दीस थिंग्स प्रेडिक्टर्स? फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू पुट ऑल दीस 180 people to, suppose कर रहे हैं, to a test. For example, an MCQ based test related to their jobs. This is one predictor. एक प्रेडिक्टर है ना, आपने टेस्ट दिया उनको एंड आपने कट ऑफ लाइन कर दी. Anybody who will get more than 80 marks in this test will be further shortlisted, and anybody who will get less than 80 marks, 80 or above marks, will be shortlisted. Anybody with less than 80 marks will be out, will not be further shortlisted. Right? Now, this is one predictor. प्रेडिक्टर इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इसके साथ हमारा एक और एनालिसिस अभी शायद इस क्लास के एंड में मैं समझा दूंगा, बट नेक्स्ट क्लास की स्टार्ट में हमने वो करना है. प्रेडिक्टर हम इसलिए कहते हैं दैट इट हैज द कैपेसिटी टू प्रेडिक्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट he or she is going to be in future. Now, there's one statement or saying that is usually used behind the philosophy of selection. The best predictor of someone's future behavior is his or her past behavior. Yes, eligibility criteria is one predictor, but when you start matching it with the job description and job specification and description, then you use multiple types of predictors. For example, your job criteria for the application was that somebody should be having master's degree. Many of the people meet that criteria, but there are further predictors that are going to predict कि कौन सा बंदा कितना बेहतर कैंडिडेट है. First class में we did a reading. Things, उसका टाइटल इस तरह था, things that HR analytics cannot capture.
तो उसमें हमने यही कहा था कि अगर आपका क्राइटेरिया है फॉर एग्जांपल 60% पे एक बंदा आता है हर चीज में तो सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आपके पास स्लॉट में ऐसे लोग हैं जो 80 90 भी हैं तो 60 इज नॉट द क्राइटेरिया, देन यू आर गोइंग टू चूज द बेस्ट वंस. सो यू यूज डिफरेंट प्रेडिक्टर्स. Yes, but again, somehow, for example, the experience is there, but it is not a very relevant experience. Suppose, or you see that out of 200 people, sometimes 20 do not have that experience, but the rest of the 180 they have the same experience. So you'll prefer them because आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कम करना होता है और उसके साथ साथ आपने देखो, good selection does not only mean to select the right person, it also means to reject the wrong person. हम सिर्फ उसको एक एंगल से देखते होते हैं, अच्छा बंदा रख लें, लेकिन अगर आपके जहन में ये नहीं होगा कि बुरे बंदे को रिजेक्ट भी करना है तो फिर सिलेक्शन की फिलॉसफी कंप्लीट नहीं होगी. yes maybe, बिकॉज वो आपको आके 3 महीने में टर्नओवर हो जाए, ठीक है, वो आपको फायदा नहीं, आपकी कॉस्ट जाया होगी रिक्रूटमेंट की और सिलेक्शन की. सो प्रेडिक्टर, प्रेडिक्टर जी सिलेक्शन, द शॉर्ट लिस्टिंग एंड स्क्रीनिंग डाउन. No. The recruitment is just the creation of pool. जैसे ही एप्लीकेशंस आ गई, आपके पास पूल बन गया, रिक्रूटमेंट फिनिशेस. उसके बाद जब आप उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करने लगते हैं, दैट इज सिलेक्शन का फंक्शन. जी सर. गो एंड कंफर्म इट. हायरिंग के ये दोनों पार्ट हो सकते हैं, हायरिंग के ये दोनों पार्ट्स आप कह सकते हो, but otherwise recruitment is a separate function, selection is a separate function. Some people merge it, but there is a line between these two functions. Exactly. It is a huge function. We are not saying कि ये simple सा function है. We are not going into details because ad creation और जो जितने legal मैटर्स इन्वॉल्व है एड देने में एंड देन रिक्रूट करने में लोगों को, अच्छा खासा काम है. जी बिल्कुल. सो अच्छा खासा काम है. रिक्रूटमेंट डज नॉट मीन कि ऐसी छोटा सा फंक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज अ सेपरेट फंक्शन, बट इट इज पार्ट ऑफ हायरिंग. हायरिंग का ये पार्ट है. सो अब अगेन प्रेडिक्टर. प्रॉब्लम विद प्रेडिक्टर्स इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स we do not use the right predictor. We do not use the right predictor. Why? And what is the issue? Because we do not give it enough importance sometimes or the priority. इनका भी कोई फायदा नुकसान होता है. For example, जरा अगर हमने एक शेफ को हायर करना है तो उससे इंटरव्यू करना जरूरी है. जिसे उसका खाना खाना जरूरी है. अच्छा सर, उसका बना हुआ खाना खाना जरूरी है सर. सिंगर हायर करना है, उसके लिए बेस्ट प्रेडिक्टर क्या होगा जो आपको बता सके कैन सिंग और नॉट? सर उससे गाना सुनेंगे, उसे गाना सुन लेंगे ना. बिल्कुल. दैट इज गोइंग टू बी द राइट प्रेडिक्टर. अगर शेफ है तो वो कुक करके दिखाएगा आपको, ठीक. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग द सेम ब्रश टू पेंट एवरीबॉडी, ऑल जॉब्स. इंटरव्यू लाजमी, इंग्लिश का टेस्ट लाजमी, टाइपिंग स्पीड फॉर एग्जांपल. If it is not compulsory, it should not be compulsory. It should not be given in the test. Because problem क्या होता है? If you're using the wrong predictor, you will end up hiring the wrong person. For example, आप सबको ये पता है, all of us face it. If you can speak good English, most of the times your interview is done.
you're passed. अगले दिन आप जॉब पे 8 बजे आते हैं या नहीं आते, वो बात का मसला है, बट आपके एक्सेंट अच्छा, इंग्लिश अच्छी है, यू विल बी गिवन प्रेफरेंस, चाहे वो आपकी जॉब इंट्रोवर्ट टाइप की हो. If it is related, very good. We are not saying it is not important, but you need to relate the predictor with the job and what a person will have to actually perform. उसके साथ आपको इसको मैच करना पड़ता है. Company who sets the criteria for the selection of. जी, कंपनी करती है with the help of HR department, सुपरवाइजर स्पेशली, क्योंकि सुपरवाइजर को पता होगा इसकी जॉब क्या करनी है. जी जी बिल्कुल, वही वो सुपरवाइजर, उसका वो जो डिपार्टमेंट है वो आपको बताएगा कि इससे ये काम मुझे रिक्वायर्ड है. एंड देन देयर कैन बी अदर मेंबर्स इन्वॉल्व. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो सकता है कि किस तरह की टेस्टिंग करनी है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. बट अगेन इफ योर प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस वाज गुड, जॉब एनालिसिस का थोड़ा सा आइडिया आपको है, जिसके थ्रू आप जॉब के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन निकालते हैं, अगर वो आपका प्रोसेस ठीक है तो आपके प्रेडिक्टर्स शुड मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. अगर वो मैच नहीं कर रहे तो देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक, अब I'll come back to these predictors. I just wanted to create a relationship between a good predictor and a bad predictor. We'll come back to it, but we're just going to go towards the selection part ताकि हमें वो completely idea. So next आपने लिया, suppose the second is the interview part, and second predictor is interview or sorry, यहाँ आपके पास आ गए 100 लोग, because 180 में से 100 ही ऐसे थे जिन्होंने 80 प्लस मार्क्स लिए. तो आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपके पास आ गए कोई 50 लोग, और इन 50 को जब आपने फॉर एग्जांपल रेफरेंस चेक किया या फाइनल इंटरव्यू किया तो आपके पास 30 लोग आए जो वाकई एलिजिबल थे. देयर आर मोर स्टेजेस टू दिस सिलेक्शन पार्ट which are hidden, not known, ठीक है, which are not known, but you need to keep these stages in mind. मसलन आपने ये 30 का पूल एंड पे शॉर्टलिस्ट करके रखना है. रीजन, जब आपने इस 30 में से 20 को जॉब ऑफर की, 20 को जब जॉब ऑफर की, there were some people, although they were the best 20, but there were some people जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे शुगल में अप्लाई कर दिया था अपनी वर्थ चेक करने के लिए. They are not going to join you. So if you're only left with 20 people at the end and 20 को जॉब ऑफर दी and 2-3 ने ज्वाइन नहीं किया, तो you'll be left with 17 employees. तो आपका सारा प्रोसेस जो है it's a failure because आपको 20 जो लोग चाहिए थे आप पूरे नहीं कर सके, right? Now suppose आपको 17 लोग मिल गए, he was just kidding, but still the moment they have accepted the offer and they have joined your organization, आपने यहां से 3 और लोग भी ले लिए तो 20 आपके पास पूरे हो गए. लेकिन the moment they have joined your organization, उनकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बुला लिया. one reason, और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर which is again hidden, बहुत सारे लोग जॉब इसलिए अप्लाई करके जॉब ऑफर लेटर लेते हैं कि अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दिखा सकें कि देखें आप मुझे 50,000 रुपीज दे रहे थे और अगली ऑर्गेनाइजेशन मुझे 60,000 रुपीज दे रही है, आप क्या कहते हैं? तो उसकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कह देती है कि मैं आपको 65 दे देता हूं, रुक जाए. समटाइम्स सो वो जॉब ज्वाइन करने की वजह ही उसकी ये होती है कि उसने ऑफर लेटर लेना होता है, सैलरी का अपना स्टैम्प दिखानी होती है और फिर वापस चला जाता है और आपको वो कुछ बहाना लगा देगा, कुछ भी कर देगा. So you might not be left with again 20 people. So you need to have this pool जहां से आप कुछ और लोग मंगवा लें. 20 पूरे किए आपने and you took these 20 people
टूवर्ड्स ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, उस पर बाद में बात करेंगे, बट आपने ट्रेनिंग करानी होती है उनकी, विच मीन्स आफ्टर ज्वाइनिंग उसको अब हफ्ता हो गया है, 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, वो कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा इस ऑर्गेनाइजेशन में, मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनल फैक्टर्स, मे बी उसको दूर पड़ रही है, और जब वो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करता है, स्विचिंग कॉस्ट, तो शायद उसको ज्यादा पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये कैलकुलेट नहीं किया था, सपोज कि मेरा जो 10,000 रुपीज इंक्रीज आ रहा है सैलरी में, और मेरे फ्यूल में 12,000 का इंक्रीज आ रहा है, एक्चुअल स्विचिंग कॉस्ट प्लस है या माइनस है, और वो छोड़ देता जॉब, वो पुरानी जॉब पे वापस चला जाता, वहां रिजाइन ये भी किया हुआ था। सो एट द एंड you should be hiring 20 best people. जी बिल्कुल, ये जो 30 हमने किया ना, ये वाला, ये रिजर्व 10 का रिजर्व पूल ही आपके पास चल रहा है, आपने 50% रिजर्व पूल बना लिया है, और इसमें से फिर आप लोगों को बुलाते जाएंगे। एंड मीनवाइल these applicants have not only applied in your organization, किसी की तो इंटरव्यू करते करते जॉब भी हो गई होती है कहीं और। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। सो ये आपका जो है, दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ द आइडिया दैट वी वांट टू डिस्कस हियर इज दैट देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिक्रूटमेंट, आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, and at each step what kind of rules you need to set. For example, आपके पास है जो 200 एप्लीकेशन आई थी, और मैंने पहला प्रेडिक्टर रखा टेस्ट लेने का। अब जरा गौर से ये समझना, फिर आपको रेशियो एनालिसिस समझ आ जाएगा। मैंने रखा टेस्ट, टेस्ट की परसेंटेज 99 रखूं, क्या होगा? हो सकता है 15 लोग आगे ना आए और बाकी सारे उड़ जाए। 50 रख दूं, पर वो कम हो जाएगा सर, वो ज्यादा हो जाएगा। 50 अगर रख दूं मैं जी, ऑनलाइन जी सर, ज्यादा लोग हो जाएंगे सर, आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाएंगे ना, रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाएंगे। नाउ वी नीड टू हैव सम आइडिया कि किस स्टेप के बाद कितने लोग हों तो फिर हम 20 लोगों को हायर कर सकते हैं। पता लगे टेस्ट हमने 80 पे रख लिया, हमारे पास 100 लोग आगे हो गए, नेक्स्ट प्रेडिक्टर पे चले गए, अगले प्रेडिक्टर पे जाके हमने इंटरव्यू में बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग कर दी या बड़ी लीनियंट मार्किंग कर दी, या कहां कट ऑफ पॉइंट्स लगाने। जी नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ, उसको दोबारा ज्वाइन करें। सो वी नीड टू हैव सम आइडिया कि कितने लोग किस स्टेप के बाद हमने शॉर्टलिस्ट करने हैं। मतलब सर इस रेशो का हमें पहले से अंदाजा होना चाहिए कि टेस्ट की स्टेज पे कितने % रह जाते हैं आमतौर पे। जी, ये जो मैं कह रहा हूं। डेटा है that can help us to identify how many people should be left after first predictor and how many people should be left after second predictor and third predictor. For example, मैंने ये 30 यूज किया फिगर, this is 150% of the total jobs that we need. ऐसे ही है, 20 हमें चाहिए, 30 हमने रिजर्व पूल प्लस टोटल पूल बनाया जिसको जॉब ऑफर करनी है। जी सर। Why 150%? There has to be some logical reasoning, some data which is supporting us कि किस लेवल से किस लेवल तक कितने लोग आपने लेके जाने हैं, कितने शॉर्टलिस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेस्ट दिया और पता चला वो मुश्किल टेस्ट था, तो आपके पास 200 में से सिर्फ 40 लोग रह गए, तो फिर आप क्या करेंगे? टेस्ट को शायद थोड़ा सा लीनियंट करें। तो मेरिट किस हिसाब से बनाना है वो एक्चुअली हमें देखना होता है ना। We'll go back to the ratio analysis and now you'll be able to understand it.
it says now their problem or their situation is that they want to hire one cost accountant. They want to hire one cost accountant. ठीक है, इसके लिए इनका प्रीवियस डेटा क्या कह रहा है? प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछ लेना जिसको ये बात की समझ ना आए मजीद. Now they are saying for every 12 applications आती हैं, for every 12 applications only one looks promising enough to invite for the interview. ये standards नहीं है, please. This is just an example. But this is what their previous data is saying, that for one candidate, 12 people, if you receive 12 applications, 12 में से एक एप्लीकेशन इस काबिल होती है यूजुअली जिसको आप इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए पसंद करते हैं, बाकी 11 यहीं आउट हो जाते हैं. ये बात समझ आ गई? जी सर. Okay. Now, every 5 persons interviewed, only one actually offered a position. वो कहते हैं जब हम 5 लोग इंटरव्यू के लिए बुलवाते हैं तो एक उसमें से इस तरह का होता है जिसको हम जॉब ऑफर कर दें तो ठीक है, इतने काबिल होते हैं 5 में से एक बंदा. ये इनका प्रीवियस डेटा शो कर रहा है. Now, every 3 people whom job offer is made, only 2 accepts the position. 2 accept the position. Why? सर ये हाइपोथेटिकल डेटा है ना सारा? ये सारा हाइपोथेटिकल डेटा, ये ठीक हो. एग्जांपल का हाइपोथेटिकल है, बट व्हेन organizations will be using it, they'll be having actual real time past data. जी ठीक हो गया, थैंक यू सर. Lights on. Okay, so then they are saying that every 10 new workers who begin the training program, only 9 successfully complete the program. So इसने सिर्फ 2 प्रेडिक्टर्स 3 प्रेडिक्टर्स यूज किए हैं, राइट? इसने कहा है कि एप्लीकेशन जब आती हैं तो हर 12 एप्लीकेशन में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जो इसका भी होता है जिसको इंटरव्यू के लिए बुलवा रहे हैं. अब थोड़ी सी बात गौर से सुन के आपने जवाब दे देना है. What if I want to call 10 people for interview? How many applications should I have? 120 सर. Right? समझ आ गई? Clear? What if, how many jobs do I have to offer in order to have 10 acceptances? थर्ट 30 सर. नहीं. How many jobs will I be offering in order to have 10 acceptances? 15 सर. जी 15. ठीक है. So based on this data you have some kind of information. समझ आई? Then यहां भी आगे कुछ लोग ड्रॉप होते हैं. So based on this data, now if we look at this data, वो कहता है कि every 100 applications must be received so that 8.33 people should be called for the interview, and 1.67 jobs should be offered, and 1.11 people must be trained so that we get one cost accountant as our employee. सर ये कैसे निकाला है इसने सर? ये इसने ऐसे निकाला है कि अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जाएं यहां से, जी सर. 9 और 1, 10 और 9 का रेशो देखें. ठीक है सर. 10 और 9 का रेशो देखें अगर,
फिर 2 और 3 का रेशो देखें, इसी तरह बैकवर्ड्स जाते रहे ना। अच्छा ठीक है सर, 10 डिवाइडेड बाय 9 1.11 होता है, ठीक जी हो जी गया जी, सर। इस तरह बैकवर्ड्स जाते रहेंगे। तो यू नीड टू हैव 100 एप्लीकेशंस in order to hire one cost accountant successfully. सही है So सर। now remember we were saying that एक बंदे ने 6000 की रिक्रूटमेंट की है और एक बंदे ने 500 की रिक्रूटमेंट की है, which is the good one. So this analysis can also tell us if it is a good recruitment or it is not a good recruitment. For example, now based on this data, what if we have to hire 13 accountants? How many applications should we get? सर 30 हायर करने से 3000 सर। 3000 जी सर। for 13. अच्छा 13 ठीक है सर। सर 14 तकरीबन 100 के करीब है सर, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई कितनी applications हमारे 1.1 पास? 13 लोगों के लिए कितनी एप्लीकेशंस रिसीव करनी है? 1300 सर। सर मैं 1300 को सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी तो सारे ठीक हैं जी। अभी एक के लिए कितनी एप्लीकेशन चाहिए हमें? 100। ऊपर तो वो जरा मुश्किल कैलकुलेशन है ना। सो फॉर वन यू नीड टू हैव 100 एप्लीकेशंस. So if you want to hire 13 cost accountants, you need to have at least 1300 applications in order to call your recruitment a good recruitment. ये समझ आ रही? This is just a prediction based on your previous data. Now, we are not saying that this is some kind of benchmark, first of all, or we are also not saying that इस 1300 में से सिर्फ 13 लोग काम किए हैं. Maybe 100 of them are capable. Maybe none of them is capable. But this is what we got from our previous experience based on the data. ठीक है? Sometimes these figures, these ratios are also sold by some consultants or sometimes by some governments. Not sold, वो provide कर देते हैं, but some consultants do sell these ratios. कि इस तरह का बंदा हायर करना है, इतनी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए. जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। जी सर नॉर्मली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? लेट्स सपोज अगर 13 बंदे हायर करने के लिए 1400 कैंडिडेट्स होने चाहिए जिन्होंने अप्लाई करना है, तो लेट्स सपोज अगर कभी आ जाता है कि जी 1000 ने अप्लाई किया है, तो क्या वो क्राइटेरिया नॉर्मली कंपनीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो रिलैक्स कर देती हैं? लेट्स सपोज अगर 1400 की बजाय वो अगर 1800 आ जाते हैं, तो वो क्या उसको मतलब थोड़ा सा मुश्किल कर देती हैं क्राइटेरिया? क्या प्रैक्टिस में क्या चल रहा है सर? ओके, पहली बात ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का और हर जॉब का एक डिफरेंट ये नंबर होगा, डिफरेंट रेशियोज होंगी. सो वी कैन नॉट हैव अ स्टैंडर्ड फॉर इवन फॉर सेम जॉब इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने गुड्स एंड बैड्स हैं. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ जॉब इन इस्लामाबाद, सेम कंपनी, यू आर गोइंग टू गेट मेनी एप्लीकेशंस. But if the same job is in, for example, Balochistan or in some far-flung rural area, तो applications definitely कम आएंगी. So ये तो एक तो context dependent है. Secondly, now if you're very sure कि आपको 1300 लोग चाहिए और आप के पास 1000 applications आई हैं, then आपने देखा कई दफा कंपनीज अभी सिलेक्शन प्रोसेस पे जाने से पहले दोबारा एडवर्टाइज कर देती हैं जॉब्स. बहुत कम होता है, या हम लोग उसकी डेट एक्सटेंड कर देते हैं सर. डेट एक्सटेंड कर देते हैं कि और एप्लीकेशंस आ जाएं. सो इफ यू वांट टू रीच दैट माइलस्टोन ऑफ 1300, यू वेट फॉर सम मोर टाइम. बट इफ देयर आर 1800 एप्लीकेशंस, तो उसमें फिर आपके पास डिफरेंट है कि किस लेवल पे कितने लोगों को आपने
ड्रॉप करना है परसेंटेज वाइज, ताकि आप इवेंचुअली उस टारगेट पे पहुंच सकें। सो उस पे हम जब एक्सेल शीट पे जाते हैं तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी देखिए, हो सकता है कि आपको 100 में से 50 अच्छे लोग मिल जाए। बट अगेन आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है। मैंने इसलिए बोला कि इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड for any job, not even from cost account. But this is how you calculate based on your past data. Yes. ठीक है, hypothetical है। So I hope we are clear about this one, because when we will move towards our Excel analysis, तो उसमें ये clarity होनी चाहिए। ठीक है। Now the next thing is the Markov analysis. Again, it is a comprehensive analysis. सर ये पढ़ चुके हैं हम पिछली बार। जी सॉरी, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर ये आपने आवाज ठीक नहीं आ रही अभी? सर वो कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ना है हमने सर। दोबारा क्या पढ़ना है? वो कह पहले पढ़ा हुआ है ना सर, तो अभी दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा 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 अच्छा, तो कोई बात नहीं, मुझे 100% यकीन है कि आपको ये नहीं आता होगा। मुझे नहीं आता सर। आपकी वजह से तो रोजी लगी हुई है, जज़ाकल्लाह सर। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी यकीन के साथ जो है मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने एक्सेल उसमें जाके करना है। और इधर असफान हंस रहा है बिकॉज उसको बिल्कुल ही नहीं आता। याद अभी आया थोड़ा सा, इसमें ये रंग ना मेरा होते बेस्ट तो फ्रेंड आपको है भी याद सर। ना आता। जी Okay. सर। So because we have new people with us, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ, तो उसके लिए I cannot say कि किसी एक बंदे, या obviously majority ने मुझे पता पढ़ा हुआ है, हमने strategic HR में पढ़ा था, अभी नहीं, मिल जाएंगे। So Markov analysis में first of all आप एक साल में होते हैं and then next year के लिए प्लान कर रहे होते हैं। For example, here in this example, we are in 2013 and we are planning for 2014. ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझने की जो जरूरत है। If you will have to make it, I've made it, but अगर आपको कभी बनाना पड़े तो it is a simple thing कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं वो आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स में लिख लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट मैनेजर इज माय टॉप लेवल। ठीक है, प्लांट मैनेजर के बाद हायरार्की में मेरे पास 4 पर्सन्स आते हैं, 4 मैन भी कहते हैं इनको फैक्ट्रीज में बहुत दफा। देन आई हैव द टीम लीडर एंड देन आई हैव द प्रोडक्शन वर्कर। ये 4 लेवल्स हैं मेरे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, 22 ग्रेड तक होते हैं लोग। दैट इज द लास्ट ग्रेड, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और 5। ये मुझे थोड़ा सा, कुछ लोग कहते हैं 1 है, कुछ 5 है, बट लेट्स सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 22, so they have 22 levels. Some banks, for example, they start with, इनका सिस्टम और है ना, OG1, OG2, OG3 and then VP, AVP and then president type. So whichever or whatever levels you have, you're just going to place them from top to bottom. Say the same levels in the same sequence. ये ज़हन में रखना, the same levels in the same sequence should be written on the top here. ये 4 लेवल इधर आ गए एंड ये 4 लेवल इधर आ गए। राइट, क्लियर? Now based on your previous data, what you do is
आपने एक्सपेक्टेड एग्जिट्स लिख लेने हैं हर लेवल के आगे। एक चीज जो हमने नहीं अभी तक समझी वो हम समझ लेते हैं। हम सपोज कर रहे हैं दैट n, दिस n is the number of people that we have right now, and we are also supposing that this is the same number that we want in future. ठीक है? So n is सर 5. ये So- जरा दोबारा से सर, सॉरी। ये दोबारा समझा रहा हूं। ये जो n है, n is equal to 5. n is equal to 5 is the number of people that we have right now at this level, ठीक है plant सर, manager level. ठीक है सर। And we are also supposing that हम अगले साल भी हमें ये 5 ही चाहिए होंगे। अच्छा सर, समझ ठीक आ है गई जी। है? जी ठीक है सर। Okay, so n is the same. Now, हमारा प्रीवियसली डेटा क्या कहता है कि प्लांट मैनेजर के लेवल पे हर साल हमें एक बंदा छोड़ के चला जाता है और एक बंदा रिटायर हो जाता है, और somehow one exit is there out of 5 people, और 20% of the exits are expected. ये बात समझ आ गई सबको? Okay. At 4% level, how many people are leaving? 4 people are leaving, or 10% of the people leave us every year. ये expect कर रहे हैं हम। जरा इधर वापस आए प्लांट मैनेजर पे। तो प्लांट मैनेजर पे एक बंदा जब चला जाएगा तो 4 लोग प्लांट मैनेजर ही रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट ईयर 4 लोग प्लांट मैनेजर लेवल पे हैं। ये बात क्लियर होगी? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 4 पर्सन्स, यहां थोड़ा सा 4 पर्सन्स कितने हैं हमारे पास? 35. हाउ मेनी आर लीविंग अस? 4. हाउ मेनी विल रिमेन द 4 पर्सन? 31 सर। 31 होने चाहिए, लेकिन 28 है। रीजन? Yes, sir. बिकॉज 3 प्रमोट भी हो रहे हैं इस साल के एंड पे। दे विल बिकम द प्लांट मैनेजर्स। जी, हैं? ये बात समझ आ गई? सर ये Clear. इन 4 में से 3 इधर आ गए। नहीं, ये 4 तो चले अच्छा। गए, छोड़ के चले गए। ठीक हो गया सर, 28 4 पर्सन ही रहेंगे। ठीक है लेकिन जी। बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशंस 3 की प्रमोशन ड्यू हो जाएगी और ये प्लांट मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है सर। 3 की फिगर हमने कैसे फाइंड आउट की? 3 की फिगर हमने इस तरह फाइंड आउट की कि हमने करियर प्लान दिए हुए लोगों को। 3 ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि प्लांट मैनेजर बनने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको 5 ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, और आपकी परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से एक्सीलेंट रही हो। तो हमारे पास 3 ऐसे लोग हैं जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा विद इन दिस ईयर। ट्रेनिंग 10 को कर चुके हैं और उनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल से 3 साल से एक्सीलेंट चल रही है। तो क्या होगा फ्यूचर में? प्रमोशन क्राइटेरिया मीट कर दिया हमने या कर लेंगे। सो हमने प्रमोशन को भी तो ध्यान में रखना है। अगले साल ये 4 पर्सन नहीं होंगे, दे विल बी एलिजिबल फॉर प्लांट मैनेजर लेवल। उसको डिसीजन क्या करना है वो बाद में बात करते हैं, बट वी एक्सपेक्ट दीज पर्सन टू बी promoted to the plant manager level. Now, what is happening at team leader? We have 110 team leaders. 13 of them are going to leave us. Somehow, one way or the other, they will not be with us in the next year. 77 of them will be the team leaders. 12 of them will be promoted to 4 person level. Now, there is another dimension that you expect 8 of them to be demoted to production worker level. Why? Again, you have a very clear career path. अगर आपकी 3 साल, अगर आपकी प्रमोशन हुई है एंड आपने 2 साल या 3 साल परफॉर्मेंस आपकी एब्सोल्युटली पुअर रही है, तो यू विल बी डिमोटेड। आप वापस अपने उस पे चले जाएंगे। और when they were promoted, they are serving the probation time, and
प्रोबेशन में उनके जो नए सुपरवाइजर्स थे उन्होंने आपको रिपोर्ट्स फॉर एग्जांपल दे दी हैं कि ये किसी काम के नहीं है, इनको वापस भिजवा दें प्रोडक्शन वर्कर। वेरी अनलाइकली, बट स्टिल there can be a possibility. So what is happening is that out of 110, 15 will be exiting, 8 will be demoted, 12 will be promoted, 77 are expected to remain as team leaders. Ji, clear? Okay. Now, same way, what is happening at the production worker? Can we have demotions at production worker level? Why? सर इधर तो डिमोशन है ही नहीं सर। नीचे इसके कोई hierarchical लेवल ही नहीं है आपका, जी ठीक है ना? इससे नीचे कहाँ भेजेंगे? जी, गाड़ी भेज सकते हैं, वही ना सर, वो मतलब उनको फिर दिक्कत होगी, एग्जिट ही होएगा सर। एग्जिट में जा सकते हैं, बट वो डिमोशन में नहीं जाएंगे जी। परसेंटेज दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100। जितना परसेंटेज निकालते हैं कि जितने लोग चलेंगे और कितने लोग जो हैं वो टोटल हैं। डिमोशन क्या प्रोडक्शन वर्कर पे क्यों नहीं रखी? 4% पे हो नहीं रही, सारे ठीक काम कर रहे हैं, फोर्सफुली करनी है तो कर देते हैं, बट अदरवाइज हम सपोज करेंगे देयर इज नो एक्सपेक्टेड डिमोशन। नाउ आउट ऑफ 861, 189 will leave us, 52 might be promoted or expected to be promoted, and 620 will remain as the production worker in their same position. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले प्लीज मुझे बता दें। क्लियर? Now, this is a simple sheet or a matrix in which we are going to get a lot of information. First of all, look at this projected supply. Now, 4 already plant manager plus 3 will give us 7 plant manager at the end of the year. How many do we need? 5. So, shortage or surplus? Surplus. Okay. No? Okay. So 28 4 persons and team leader कितने promote हो रहे हैं? 12. So we'll have 40. What is the needed number? 35. So surplus. What about here? 129. ये क्या है? 77 टीम लीडर ही रहेंगे, 52 जो है ये प्रोडक्शन वर्कर्स जो प्रमोट होके ये बन गए हैं। So what is the number? सरप्लस ही है सर। 110 surplus. What about this one? इधर शॉर्टेज है सर। ये शॉर्टेज आ गया आपके पास। Now, इसका डिसीजन क्या पॉसिबली हो सकता है वो बाद में डिस्कस करते हैं, बट इन दिस one analysis, do we have the number of people who are leaving us in this year? Do we have that? Total number of people who will be leaving us. वो क्या है? जी सर। इनको टोटल कर देंगे लोग। सर 189, 13, 4 और 1 इसको 189 total plus कर 13 plus 4 plus 1. Right? Do we have the turnover or the exit at each level? Yes. The percentage. Do we have an idea that how many people will be promoted from one level to the other level? जी सर। Clear idea. Do we have the number of people who might be demoted to the lower level? Yes. Do we have the projected supply at each level? Yes. Do we have the projected supply total कर लेंगे, फॉर्मूला एक लगा देंगे तो आ जाएगा। Now, do we have the shortage and surplus or equilibrium decision with us at each level? जी Yes. सर।
70 जी, सॉरी मुझे आपकी बात, ये 7, ये वाला 7, ये बच्चे 4 प्लांट मैनेजर आपके पास पहले वाले रह गए थे, 3 ये प्रमोट होके इधर आए हैं, तो इन दोनों को प्लस करें तो 7 आ जाता। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड सप्लाई टोटल कितनी है? सो दिस इज व्हाट मार्कओव एनालिसिस कैन डू फॉर अस, जिससे हमें बड़ा क्लियरली बहुत सारी चीजें एक ही मैट्रिक्स में नजर आ जाती। नाउ another question, for example we studied the vacancy analysis, ये वाला जो वैकेंसी एनालिसिस था, ये वाला, इसकी ज्यादा बेहतर फॉर्म विद प्रमोशंस एंड डिमोशंस इज हियर। Can we calculate the turnover rate of the organization? Okay, do that for me. Calculate the turnover rate based on this Markov analysis of the organization. Each level पे हुई है। Sir, it's 207. टर्नओवर रेट इन परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और जो ऑनलाइन लोग हैं वो 2-3 मिनट बाद जब मैं पूछूंगा फिर बोलेंगे, बिकॉज यहां वाले आपका सिर्फ आंसर लिख लेते हैं चाहे गलत ही हो। पता नहीं देखो सर मुझे नहीं याद वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या है? और से जरा देखो कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग टोटल आपके पास है। तो ये लास्ट क्लास कोई बात नहीं समझ आएगा, मैं समझा दूंगा, बट अभी जो है टर्नओवर रेट चाहिए इन परसेंटेज। सर ये there are points involved, decimals involved, include them. 20 overall, full organization. सर अभी मैं पूछता हूँ कुछ काम। सर ने कहा है अभी रुक जाएं, बाद में पूछेंगे हमसे जो ऑनलाइन है। अच्छा उनको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ वो अभी क्लासरूम में मेरे ख्याल से रोटेट हो रहा है।
सो ऑनलाइन लोग आप बताएं जरा क्या आया आपका? सर मेरा तो 20% आया है। 20.47 सर मेरा भी 20.47। सर मेरा भी Okay. 20.47 आ रहा है। Okay, what about other people online? सर मेरा भी 20% आ रहा है। Okay, हाँ जी, यहाँ who got 20 point something? 20 point Sir, something. Who मेरा- got 25 point something? सर 20.47। 72 वाला वो मसला स्पेशल है कोई। 72 वाला वो MBA 72 Okay. How did you do it? What was the formula? एवरेज वाला फॉर्मूला लगेगा। Okay. And how much was that? Okay. Was this 207 all the exits? Yes. Okay, right. Then Then I added the total number at each division. At- Like 1 manager, 5 and 4 and okay. Two calculations were done. First, the all exit at all the level were summed up, and then N at all the levels were summed up. And how much was the total number of employees? 1011. Okay. Double Then one. what did you do? I divided 2 to 7, 5, that total 1011 and then multiply by is equal to 20.47. Do it again. 207 divided by 1011 multiplied by 100. तो ये मे बी कैलकुलेटर का इश्यू आ रहा हो। सर राइट आंसर क्या है? फोन वाला कैलकुलेटर यूज करो। सर दोबारा बोले 207 डिवाइडेड बाय। वेट जी, दोबारा रिपीट करें 207 डिवाइडेड बाय। एजाज आप वो मैंने तो नंबर नहीं बताना इसलिए कि आपने टोटल करना है ना पहले। एवरेज वाला लगेगा ना सर? देखें जरा, ये 1 + 4 + 13 + 189 इन सब ठीक करना है। ठीक है सर। 207 आ जाता है बिल्कुल सर। और फिर इनको प्लस कर लें 5 + 35 + 110 + 8 ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इज 1011। बिल्कुल सर ऐसे ही किया हुआ है। 207 divided by 1011 multiply by 100। ठीक है सर। टोटल नंबर था। So this is how this one matrix has the analytical power to give you many things if you have the right data, and then you can make the decision. Now, some people were worried about the decisions. The decision is, for example, you have a surplus here, and ये 3 लोग प्रमोट भी हो रहे हैं। Again, it is not something standardized कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। It is company dependent. For example, वो एक बंदे को जो इन 3 में से सबसे सीनियर होगा उसको प्रमोट करके यही पोजीशन भी दे देंगे। जो दूसरे 2 हैं वो शायद उनको 4% ही रखें, लेकिन उनको बेनिफिट्स इस लेवल के दे दें। But again, I am not saying that this should be the decision. This might be one of the decisions. आपके पास 4% हैं तो हो सकता है आपको कहीं ट्रांसफर करने हो तो you can easily transfer 5 of these people. इसमें से भी किसी की प्रमोशन देख लें अगर क्वेश्चनेबल है या कोई ऐसी चीज है या कोई रेजिग्नेशन ज्यादा लेके आता है, रेजिग्नेशन आ रहे हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या कुछ भी है। सो यहाँ डेफिनेटली आपको हायरिंग की जरूरत पड़ रही, यहाँ नजर आ रहा है कि हायरिंग की जरूरत है। ठीक है, ओके। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम these 2 types of analysis, online and offline?
बेसिक फिलॉसफी एंड सर कॉन्सेप्ट जी। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपने कहा कि ये टीम लीडर वाले पॉइंट में से अगर किसी को ऊपर प्रमोशन देनी हुई तो दे देंगे, तो इन एचआर तो ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना कि अगर आप इनर ही एक एम्प्लॉय को लेते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट ज्यादा आती है। जी कॉस्ट तो ज्यादा आएगी, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से फिर एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई भी रखना है। लेकिन अगेन मैंने कहा सिर्फ हाइपोथेटिकल डिसीजन मेकिंग है, कंपनी डिपेंडेंट है कि कंपनी क्या डिसीजन करती है। ओके सर। ठीक है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, लास्ट थिंग दैट वी वांट टू हैव एन आइडिया अबाउट एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सेल एनालिसिस। ठीक है, when we were talking about this predictor, and I was again and again repeating it, and then we said that predictor should be matching with the job requirement. The problem here is that what if the job is being selected for the first time और आपने बड़ी कोशिश करके वो प्रेडिक्टर लगा लिया, और जो भी प्रेडिक्टर्स आप प्रीवियसली लगाते जा रहे हैं वो कैसे आपको पता है कि यही प्रेडिक्टर्स फ्यूचर में भी ठीक है? सो देयर इज वन थिंग which is known as expectancy chart. Selection expectancy chart. Expectancy chart. Expect से. Now please ask me questions अगर जब कहानी ये ना समझ आए तो, ऑनलाइन एंड यहां जो लोग। Expectancy chart is a very helpful tool which is going to give you a very good idea, authentic idea, that if some predictor is a good predictor or an average predictor or is not a good predictor at all. So it takes some time, sometimes 3 years, sometimes 1 to 2 years to develop this matrix based on the data. But if you keep on developing these expectancy charts, you will end up having very good predictors, or you will end up having or eliminating the bad predictors in the selection process. That is the third thing that we need to understand for today's analysis. Now, what do we mean by these expectancy charts? For example, we hired a batch of people. For example, 15 people were hired in 2016. ठीक है? And हम इस पे 2 या 3 पे सिर्फ करते हैं, आपके पास ज्यादा एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं। A, B and C. These were the 3 employees which were hired in 2016. Okay? So 2016 में when they were hired, their test scores were, for example, their test scores were 80. ए एम्प्लॉय को 80 स्कोर मिला था टेस्ट में, जिसकी बेस पे ये हायर हुआ था, या मेरिट जो बना था। हम अभी एक प्रेडिक्टर की बात कर रहे हैं। बी गॉट 90 marks and C got 70 marks. जब ये लोग 2016 में हायर हुए थे, सिलेक्ट हो रहे थे, इन पे जो प्रेडिक्टर यूज हुआ था, जो टेस्ट आपने यूज किया था, उसमें इनके ये मार्क्स थे आउट ऑफ 100। ये बात समझ आ गई? नाउ ये प्रेडिक्टर ठीक था या नहीं ठीक था इनके लिए?
हमें ऐसे नहीं पता चल सकता। हम अब क्या करेंगे कि हम इनके स्कोर्स को डेटा में सेव रखेंगे, राइट, एंड वी विल डेवलप एन एक्सपेक्टेंसी चार्ट। 2017, 18, 19, 20 तो हमने क्या किया, यहां तो हमने इनके टेस्ट स्कोर्स देखे हैं या मेरिट स्कोर देखा है 2016 में जब ये हायर हुए थे। नाउ दिस इज द मेन गेम। 2017 में इन एम्प्लॉइज ने कैसा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होती है ना हर एम्प्लॉय की 6 माह बाद, साल बाद। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ए जो था उसने जो परफॉर्म किया है that is 95%. In 2017, 98%, 18 में 95%, 19 में, and say 95% again in 2020. Because they were, all three of them were hired at the same level, same job, with same predictive analysis, same test. This person performed 60% here, 62% here, and 59% here, and 69% here. सर ये जो हम इनको परसेंटेज दे रहे हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, ये उससे थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलेंगे तो मुझे समझ आएगी। सर मैं कह रहा हूँ कि हम जो इनको परसेंटेज दे रहे हैं ऑन परफॉर्मेंस, ये उससे तो 2016 वाले स्कोर से तो अनरिलेटेड है ना सर, वो तो एक टेस्ट का स्कोर है। वो और टेस्ट ये का आपका स्कोर डिफरेंट है। ये जो हमारा स्कोर है, आई शुड बी यूजिंग डिफरेंट कलर, मतलब ये अदरवाइज उससे अनरिलेटेड है ना सर? ये फिलहाल अनरिलेटेड है, बस ठीक है सर, थैंक यू। फिलहाल अनरिलेटेड है, बट दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिलेट इट टू देयर परफॉर्मेंस एट द एंड। नाउ दिस पर्सन परफॉर्म्ड 80, 85, 90, 95, 95, ठीक। Now we have the data of these people who performed for 3 years after their hiring or after their selection. Now, based on this data, actually what we were expecting was that B should be the best person. Based on this test data, हमने कहा ये हमारा टॉप परफॉर्मर होना चाहिए, बिकॉज इसने उस प्रेडिक्टर पे अपने आप को टॉप परफॉर्मर शो किया है। इट शुड डेफिनेटली मैच विद द परफॉर्मेंस। बिकॉज हमारा प्रॉब्लम क्या है सिलेक्शन का, हम सिलेक्शन में वो चीज प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं जो हम बाद में मेजर कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये 90 वाले बंदे ने एवरेज जो परफॉर्म किया है दैट इज 61%। सर तो फिर प्रेडिक्टर अच्छा ना हुआ? अच्छा ना हुआ प्रेडिक्टर, दिस इज वन साइन। बट देखिए, यू नीड टू हैव इनफ डेटा और इनफ एक्सपेक्टेंसी डेटा टू से दैट इट इज नॉट अ गुड प्रेडिक्टर। बिकॉज हो सकता है इसके बाद इसके कोई पर्सनल इश्यूज हो गए हों या कोई भी ऐसा मसला, बट स्टिल इफ वी हैव, सपोज ये 3 का डेटा इज अ वेरी बिग डेटा सपोज कर रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जिसके 80 आए थे, 80 वाले को सेकंड लेवल पे परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन ये टॉप पे परफॉर्म कर रहा है, इज द प्रॉब्लम।
and 70 wala is mediocre. So what we expected out of these predictors, at B, A and C combination आना चाहिए था हमारे पास in terms of performance of the next 3 years. But हमारे पास जो order आ रहा है that is A, C and B. So B, A, C is what we expected, but A, C, B is what we got. This means जो प्रिडिक्टर से आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि ये आपके लिए प्रिडिक्ट करके देगा कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, ये इस पे पूरा नहीं उतर रहा. दैट मीन्स प्रिडिक्टर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये प्रिडिक्शन ठीक नहीं कर रहा. बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम क्या, अब इशू क्या आता है मैं आपको बताता हूं. जहां आपकी क्रोनिज्म और नेपोटिज्म आती है सिलेक्शन में. नेपोटिज्म सबको आइडिया है ना क्या है? जी सर. नेपोटिज्म इज जब सिफारिश पे आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को हायर कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हायरिंग, उनको फायदा दे रहे होते हैं. ठीक है? The same word with slightly different meaning, that is used as cronyism. Cronyism usually politically use होता है या फिर गवर्नेंस के लेवल पे या टॉप सीईओ लेवल पे यूज होता है वर्ड, जहां आप क्या करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी पोजीशन दे देते हैं और आपके फ्रेंड आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी पोजीशन दे देते हैं. सो यू गिव बेनिफिट एंड यू टेक बेनिफिट. फ्रेंड्स को या अपने ही करीबी सर्कल को आप अपनी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लगा लेते हैं. क्रॉनिज्म. अब इसमें इशू क्या आता है, कहां ये प्रॉब्लम आती है? बेसिकली जो ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है एचआर की सिलेक्शन के उसमें, देयर आर सम थिंग्स विच आर क्वांटिटेटिव. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेस्ट लिया एनटीएस के थ्रू या कोई और, that is quantitative, and fidgeting or playing with that data is very difficult. For example, अली है और इसके साथ असफंद है और मल्टीपल लोग हैं, सब अपेयर हुए एंड अली ने somehow सबसे ज्यादा मार्क्स ले लिए. Now उन मार्क्स को चेंज करना is difficult. क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, नंबर है. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को चेंज करना मुश्किल हो गया, बट मेरिट बनाते वक्त या सिलेक्शन प्रेडिक्टर्स रखते वक्त लोग क्या करते हैं, वो क्वालिटेटिव चीजों को भी ले आते हैं साथ. मसलन इंटरव्यू के मार्क्स. एक बंदे ने अपनी सीजीपीए की बेस पे टॉप कर लिया, उसने मार्क्स में भी टॉप कर लिया, वो नंबर 1 हो गया. ठीक है? आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स उसका मेरिट क्या बन रहा है? नंबर 1. टोटल वेटेज क्या हुआ? उसकी एजुकेशन का वेटेज हो गया 30%, उसके टेस्ट का वेटेज हो गया 30%. तो आउट ऑफ 60 1 person is at the top. Fine. Remaining 40 is the qualitative aspect. Say interview, reference check. अब क्या करेंगे कि जिसने 60 आउट ऑफ इसने फॉर एग्जाम्पल 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स ले लिए, यहां तो वो टॉप कर रहा है, 60 आउट ऑफ 60 आ गए. दूसरा बंदा कोई भी है जिसके से इस 60 में से 30 मार्क्स आ गए हैं, इनको तो चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है. बट आपके पास 40 का मार्जिन है और क्वालिटेटिव का, तो करते क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रेडिक्टर्स में, कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं. अगला बंदा जो इंटरव्यू में आया, जो टॉप करके आया है, उसको आपने इंटरव्यू में 10 नंबर दे दिए आउट ऑफ 40. कितने मार्क्स बन गए? 70.
और इसको आपने 40 में से 40 दे दिए। सो ओवरऑल मेरिट जो है वो ठीक बन गया। नाउ एक्सपेक्टेंसी चार्ट क्या कहेगा आपको कि जिस बंदे को 40 आउट ऑफ 40 इंटरव्यू में मार्क्स मिले थे, क्या वो अगले 3 साल की परफॉर्मेंस भी ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज हमने एक ही प्रेडिक्टर पे बात की है। समटाइम्स वन प्रेडिक्टर इज फाइन बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द अदर प्रेडिक्टर। तो आपको करना क्या पड़ता है, आपको हर प्रेडिक्टर पे परफॉर्मेंस के साथ उसको अटैच करना पड़ता है, और जो प्रेडिक्टर परफॉर्मेंस के साथ मैक्सिमम लोगों का नहीं करता उसको या तो ऑब्सोलीट करते हैं या उसमें कोई नई एडिशन डिलीशन करते हैं। तो एक्सपेक्टेंसी चार्ट ये हम आज एक्सेल में नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट टाइम आपको करवाऊंगा, बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग जो आप सिलेक्शन के पार्ट में जाके चीजें ठीक कर लेते हो। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी, ऑनलाइन क्लास, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके सर, ये जो प्रेडिक्टर हमने वैसे पहले अभी देखे थे, तो क्योंकि ये हमें मतलब एक तरह से तो ये हमें अच्छा नहीं बता रहे, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर देखें तो देन वी नो हु नॉट टू हायर। मतलब अगर बहुत ज्यादा कोई उसमें बेहतर करे तो फिर उसको हम ना रखें, तो इन दैट सेंस तो इट कैन बी अ गुड प्रेडिक्टर। जी, हु नॉट टू हायर की फॉर्म में इट माइट बी अ गुड प्रेडिक्टर, बट फिर वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है कि अगर आपने जब रिजेक्ट करना है तो उसमें वो प्रेडिक्टर लगा लें। इस तरह सही साहब ने भी यहाँ कहा कि समटाइम वी नीड टू रिजेक्ट पीपल बेस्ड ऑन ओवर क्वालिफिकेशन। जी, ठीक हो गया सर। इंतहाई इंटेलिजेंट बंदा आ गया, वो आपकी बात ही ना सुनेगा, एंड देयर आर जॉब जिसमें आपको उसको ऑर्डर देने हैं और उससे काम लेना है सपोज, तो आप देख लेंगे ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट या ओवर कॉन्फिडेंट है, तो हो सकता है आप इस बेस पे उसको रिजेक्ट भी कर रहे हो। जी सर। जी, ज्यादातर यही होता है। मैं आपके साथ वैसे ही एक शेयर कर रहा हूं। हमारे पास प्रोग्राम सपोर्ट ऑफिसर होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल माय सजेशन वाज दैट वी नीड टू हायर अ पर्सन जिसके पास एफएससी या बैचलर्स की डिग्री हो 2 साल पहले, 2 साल वाला बैचलर्स किया हो या एफएससी की। कंप्यूटर आजकल माशाल्लाह सब कुछ लगा रहा है, वो टिका रहेगा। The kind of salary we give them, the kind of benefits at that position we give them, if MS वाले लोग भी हायर करेंगे, MBA वाले लोग भी अप्लाई तो सब करेंगे, but if you give them job, they will come here, they will gain a little experience, switch कर। तो आपको सारा प्रोसेस आएगा। और you are enthusiastic, right? And you are very, you are qualified for that. You are asking for that. That will be, but you are more like a single representative. So I asked the panel from which gentleman know suitable for position. Who is overqualified? Probably I would say no. He's a very rich gentleman, and also I was. The person that who sooner or later you guys can make you guys a better job. At one time, he has no job and he can accept a job. So after a couple of months, he got a job in Dubai and he and over the entire selection process was exactly. तो सारी कॉस्ट सारा एफर्ट जाया हो गया। तो आपको देखना है कि आपको जो आपको ऑप्शन प्राप्त हो रहे हैं जो कि साथ चल सो इस तरीके से एक्सपेक्टेंसी चार्ट्स आर समथिंग जो आपको बता रहे होते हैं कि किस तरह के प्रेडिक्टर्स रखें तो ज्यादा बेहतर बात। ओके, मैं आपको भी भिजवाता भी हूँ सबको, ये ईमेल भी कर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भिजवा देता हूँ और ईमेल भी कोशिश करता हूँ अगर हो जाए
तो हम लोग इसमें सर ये स्लाइड्स आपने ज़ेपडेस्क में डाली हुई है सर? स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूं अभी। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। रेशियो एनालिसिस इज हियर। जी हाँ, दैट इज अ सेपरेट थिंग, दिस इज फॉर एचआर, ये एचआर पर्सपेक्टिव से। ओके, हियर वी हैव, जल्दी छोड़ेंगे, मैं सुबह 9 बजे का बैठा हूँ उधर, तो मैं अभी नहीं थका तो कोई मसला नहीं। ओके, वी हैव दीज जॉब टाइटल्स विद अस। अच्छा सॉरी, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। सर एक्सेल फाइल पे आ गए हैं। एक्सेल फाइल आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। जी सर। पहले तो मैं अभी समझा दूंगा आपको, then I'll share the file with you and then you're going to have the kind of experiments इसके साथ. So we have these job titles, different job titles. Hello. जी सर। इधर वालों को कह रहा हूँ, आप लोग तो शायद सुन ही रहे हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, लाइवा बच्चे बताओ। सर मैं आज जल्दी क्लास ऑफ कर लूं? जी सर मैं अभी क्लास ऑफ कर लूं आज जल्दी के लिए, क्योंकि मुझे जाना था। मुझे इस तरह की चीज पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आप काम है तो आप ऑफ कर जाओ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So we have these job titles. Hello. जॉब टाइटल्स हमारे पास हैं, एंड हमारे पास ये जो ग्रीन में है ऊपर, ये ग्रीन में वी हैव द ट्रेंड एनालिसिस, एंड रेड में वी हैव द प्रेडिक्टिव एनालिसिस। नहीं हो रहा सर, आ रहा था सर, नजर आ रहा था सर। आपको आ रहा है नजर, यहां वालों को नहीं आ रहा ना। ओ अच्छा ठीक है, सॉरी सर। नहीं आ रहा इधर। तो इनको भी कहीं ऑनलाइन आ जाए। ऐसे ही लग रहा है मुझे। सर वैसे ना, वैसे अनरिलेटेड टू दिस, हमारा ज़ेपडेस्क भी नहीं सर चल रहा और ज़ेपडेस्क की वेबसाइट भी नहीं चल रही सर। हाँ, लेकिन उसका इसके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होना नहीं चाहिए। उसका इसके साथ नहीं होगा सर, बिल्कुल। ये तो कोई मल्टीमीडिया का प्रॉब्लम आ रहा है। Okay, let me share this file with you. सारे अपने कंप्यूटर ऑन कर लें, ठीक है। सो व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप से इधर कैसे करोगे? सर वेब व्हाट्सएप के जरिए डाल लेंगे सर।
Ali, there's a level एक बंदे को बुला के लाओ. I'm sharing the file on WhatsApp. Thank you, sir. अब इसको फॉरवर्ड करके या जैसे भी है डाउनलोड कर दें. हाँ जी, मिली. आ गई है, सर. हाँ जी. Did you get the file? जी सर. ओके, यहाँ वाले लोगों को मैं जरा इसको करवा लूँ एंड देन WhatsApp पे आ गई. एक्शन है. वैसे क्या होता है? ये मैं एक्सेल फाइल शेयर कर रहा हूँ, ये हो नहीं रही, यहाँ नहीं आ रही, क्या मसला है? ये इसका वो सेटिंग का मेरा भाई जरा देख. जरा स्टैंडर्ड डिस्प्ले के डुप्लीकेट डिस्प्ले कीप चेंज. थैंक यू. सेफ्टी तो नहीं. ओके, सो वी हैव दिस फाइल विद अस हियर. नेट नहीं भी कनेक्ट हो रहा तो पहले इसको जरा देख. ऑनलाइन पीपल, कैन यू सी द एक्सेल फाइल? जी सर, देख सकते हैं सर.
ओके ओके, इधर देखो सारे, वी हैव दीज जॉब टाइटल्स विद अस, ठीक है, एंड इधर जरा गौर से देखें, द ग्रीन वन, द ग्रीन डेटा इज द ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, तो रेड वन इज द फ्यूचर प्रेडिक्शन. Now, predictor 1. Now, our past data is showing us. उनको पासवर्ड वगैरह बता, बस ये आपको कंप्यूटर्स लगा देते हैं, आप इधर ही देखें अली. So the past data is telling us कि हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट जो है, ये 259 जब हमने रिक्रूट किए थे, 259 एप्लीकेशंस आई थी. तो बेसिक क्राइटेरिया जब आपने स्क्रूटनी की थी, आपके पास 236 रह गए थे जब एप्लीकेशंस आप सिफ्ट कर रहे थे. ये बात समझ आई? फिर जब आपने लोगों का टेस्ट लिया, आपके पास 194 लोग जो थे ये बच गए थे आउट ऑफ 236. जब रेफरेंस चेक लेवल पे आए तो आपको 90 का रेफरेंस चेक करना पड़ा सिर्फ, एंड उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू के लिए आपने 56 लोगों को कॉल किया. फर्स्ट इंटरव्यू के लिए 56 लोगों को कॉल किया, देन फाइनल इंटरव्यू के लिए 56 में से 10 लोगों को कॉल किया, एंड देन 5 लोगों को जॉब ऑफर की, 3 को ओरिएंटेशन करवाई, 2 को ट्रेनिंग दिलवाई और 1 बंदा आपके पास रह गया. दिस इज सम रैंडम डेटा, बट now we are saying, what we are supposing is that this data which is in green is the actual data of past recruitment, or the average of actual data in the past recruitments. ये तो एक दफा हमने हायर किया होगा वर्चुअल असिस्टेंट, और जितनी भी दफा एप्लीकेशंस उसकी आई, उन सब की एवरेज ये है एक उसके लिए, एक जॉब के लिए, एंड इस तरीके से हमारे पास ट्रिकल डाउन होते होते एक जॉब के लिए ये हमारे पास प्रेडिक्टर के लेवल्स हैं, जहां हमने इस तरीके से लोगों को लेके आना है. अब ये तो हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस हो गया, इसकी बेस पे हमने प्रेडिक्शन एंड प्लान बना लिया. वो प्लान हमने क्या बनाया है? नाउ दिस इज द सेम डेटा, ये जो भी हमने डेटा इस पे लिखा हुआ है, दिस डेटा इज द सेम जो वहां से आया, बट ये डेटा एक के लिए हम यूज कर रहे हैं व्हेन वी नीड टू हायर 1 पर्सन. सो इस तरीके से हमें ट्रिकल डाउन करना है. एम्प्लॉय नीडेड इज 1, यहां तक हम एम्प्लॉय नीडेड अभी 1 पे जा रहे हैं. तो 1 के लिए हमारे पास बेंचमार्क्स अवेलेबल है. ये बात समझ आई? नाउ इज द क्वेश्चन टाइम एंड द प्रेडिक्शन टाइम. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग कि मैंने पेंटर हायर करने हैं, पेंटर इज माय, ये थोड़ा सा इसमें हुआ पेंटर इज माय व्हाट लेवल? 42 लेवल. बाकी लोग भी सीरियल नंबर जरा ठीक कर लें, ये पहले मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाया हुआ था. सो 42 नंबर इज द पेंटर. अगर मैंने पेंटर हायर करना है या करने हैं, तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ पीपल दैट शुड बी screened down and shortlisted at different predictor levels. So I'll simply go to this painter bar. ये मेरी पेंटर की बार है, इसमें मैंने लोगों को हायर करना है,
एंड ये मेरे पास डेटा है एक्चुअली। इसको जब आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको मजीद आइडिया होगा। अगर मैंने पेंटर हायर करने हैं, हाउ मेनी पेंटर्स मैंने हायर करने हैं, तो क्या होगा? सपोज करें ऐसी कोई गिव मी अ नंबर। सर अगर 5 हायर करने हैं, हमने 5 हायर करने हैं, तो हम इस 1 की जगह पे मोमेंट वी विल एंटर 5 पेंटर्स, हमारे पास ये डेटा चेंज हो गया। सारे चेंज हो गए। जी सर। पहले क्या था 1, जी इस पे सर। ये डेटा शो कर रहा था। हमने कहा हमने 5 पेंटर हायर करने हैं, तो डेटा हमारे पास चेंज हो गया। नाउ इन ऑर्डर टू हायर 5 पेंटर्स, एक और चीज यहां थोड़ा सा सीख लेते हैं कि हमारे पास यहां होता है फ्रीज पैन। सॉरी सर, क्या होता है? फ्रीज पैन। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। फ्रीज पैन कर लें तो हमें ऊपर की जो हमारी रोज हैं वो नजर आ रही होती हैं, व्यू में है। ओके, फ्रीज पैन, ये फ्रीज पैन हमने कर दिया। अब हम अगर इस तरह चलते जाएंगे तो ये हमारे साथ रहेगा, ठीक है टैब। सो ये आप वैसे जरा देख लेना। नाउ इफ वी नीड टू हैव 5 पेंटर्स हायर्ड एट द एंड, आप मुझे खुद बताएं कि हाउ मेनी एप्लीकेशंस शुड वी रिसीव इन ऑर्डर टू हायर 5 पेंटर्स? सर 14-20। 14-20। In order to hire 5 painter, 14-20 applications आ जाए, तो that is a appropriate recruitment। ये बात किसको नहीं समझ आई? क्लियर न्यास, एवरीबडी? क्या हुआ? फॉर्मूला लगा हुआ था, वो भी आपको मैं इसलिए मैंने वो कर दिया, आप इसको मिटा के मैं आपको दोबारा फॉर्मूला लगवाऊंगा। नाउ कितने लोग हमें जो है वो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाने हैं ताकि 5 पेंटर हायर कर लें हम? 270 सर। 270 लोग हमें चाहिए इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, ताकि हमारे पास 5 पेंटर एंड पे हायर हो जाएं। कितने लोगों को जॉब ऑफर करेंगे? 25 सर। 25 को जॉब ऑफर 25 करेंगे, सर। तो फिर हो सकता है कि 5 पेंटर इवेंचुअली हमारे पास आ सके। सर ये वैसे बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की कोई रिक्रूटमेंट हो रही है सर। नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर जॉब ऑफ इकोनॉमिस्ट। एन इकोनॉमिस्ट की जॉब के लिए सपोज आपने 20 इकोनॉमिस्ट रखने हैं, तो 5100 एप्लीकेशंस आपके पास अगर आए, तो देन यू विल बी एबल टू हैव इनफ पीपल एट द एंड। एंड इसी तरह नेक्स्ट लेवल्स पे ये लोग आपके पास आने हैं, बिकॉज वी नीड टू हायर 20। अब यहाँ एक और ट्रेंड बता रहा है वो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने लोग ज्वाइन करते हैं सारे ही आ जाते हैं आपके पास, यहां से कोई लूज नहीं करते आप। समझ आई? इकोनॉमिस्ट लेवल पे जितने ट्रेनिंग में लोग आ जाते हैं तकरीबन सारे आपके साथ रह जाते हैं एज एम्प्लॉइज। बट पेंटर लेवल पे क्या हो रहा था? ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं। So it is different for different jobs and in different organizations. एक्सक्यूज मी सर, जी, ये जो हम 5100 ये जो पूल बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है या ये किसी स्पेसिफिक फार्मूले की तहत बना रहे हैं? ये ज्यादा इसलिए हैं कि ये देखें जरा, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को करने के लिए 255 एप्लीकेशंस चाहिए। ओके, Again, this is what is data saying at different levels. This is your past data. ज्यादा कम हो सकते हैं आपको लग रहा हो, but we need to get the concept right and the analytics right.
बाकी डेटा वगैरह जो भी ऊपर नीचे होगा वो हो जाएगा। ओके सर। हाँ जी, क्लियर। वैसे सर इस एनालिसिस फॉर्मूला जी मतलब सर इस एनालिसिस से जो बजटिंग फोरकास्ट वो भी बंदा कर सकता है कि रिक्रूटमेंट के दौरान मतलब कितने वो फाइनेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं पर यूनिट के हिसाब से। फाइनेंसेस कितने रिक्वायर्ड होते हैं जी, मतलब कि सर इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डेफिनेटली बजटिंग तो रिक्वायर्ड मतलब होता है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें सर। कॉस्ट ऑफ हाँ, वो इसमें हम एनालिसिस अभी नहीं कर रहे। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट बाद में जाके कैलकुलेट करेंगे, वो आपको मैं रिटेंशन में जाके कैलकुलेशन उसकी करवाऊंगा। राइट सर, राइट। हाँ, ये हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं जो हमने पहले बात की थी कि कैन वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट फर्स्ट प्रेडिक्टर, हाउ स्ट्रिक्ट और हाउ लूज द प्रेडिक्टर कैन बी। तो एटलीस्ट इस तरह का मैनेज करें कि इतने लोग आपके पास शॉर्टलिस्टेड होके आए डिफरेंट लेवल्स पे, ताकि आप right appropriate number of people can be hired. That is the main gist of this analysis, ratio analysis की। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी प्लीज। सर ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पिछले साल 2-3 का डेटा होगा तो वो करेगी, और जी। जो कोई नई होगी सर, अच्छा, जो वो नई कैसे करती ऑर्गेनाइजेशन होगी होगी, देखें ये चीज ध्यान में रखें, जो नई ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपनी तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लेके फिर प्रिडिक्ट कर सकती है। रिग्रेशन एनालिसिस सर, रेशियो एनालिसिस पे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं ना। देखें, एक और कॉन्सेप्ट यहां मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ समझा दूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब्स। one type of jobs are known as benchmark jobs, benchmark. The other are known as non-benchmark jobs. Benchmark jobs are those jobs for which data is readily available about the job, about the person. Non-benchmark jobs are the ones for which data is not readily available in the market. For example, अगर आपको मैं ये क्वेश्चन करूं, you have a new organization and मैं उसमें सिक्योरिटी गार्ड, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी गार्ड हायर करना चाह रहा हूं, उसको कितनी सैलरी दूं अंदाजन। सो ऑल ऑफ यू आर इन अ कंडीशन कि आप मुझे बता देंगे कितनी सैलरी दूं। जी समी साहब बताएं कि कितनी सैलरी सिक्योरिटी गार्ड थर्ड पार्टी को हम दे सकते हैं। सर अबाउट 25,000 सर। 25 सर। 25,000 चले। ऑल इंक्लूसिव सर। हाँ जी। इफ यू टॉक टू सम थर्ड पार्टी दे आर 20 to 25, बट एक्चुअली उसको गार्ड को इसमें से 12-13 हजार ही मिल रहा होता है। 10,000 जी ठीक, जो भी है। सो आपने ये किस बेस पे मुझे बता दिया और मुझे किस बेस पे पता चल गया? आपने 2 लाख क्यों नहीं कहा? Because you know the worth of this job and what people do in this job and how much money and how much market worth is there of this job. So for jobs जिनका डेटा अवेलेबल है मार्केट में, easily comparable, they are known as benchmark jobs. For example, जब अभी तो खैर ये भी बेंचमार्क ही है। Talk about 2005 digital marketing expert, उसको कितने पैसे दें? ऐसा बंदा जो घर बैठ के काम कर रहा है। अभी तो फिर भी ये स्टैंडर्डाइज है, but it was not standardized in 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then it became a standardized job. So jobs for which data is not readily available are non-benchmark jobs. So जब भी अगर हमारे पास डेटा ना हो किसी भी चीज का, तो if it's a benchmark job, which is most jobs are benchmark jobs now, you can very easily collect data from other organizations and then predict
what you are going to do. जी, और कोई क्वेश्चन? एक्सेल की फाइल इज ओपन विद एवरीबॉडी। फॉर्मूला मैं बताता हूँ। फॉर्मूला आपने इसी फाइल में जरा देखना है कि कहाँ लगा हुआ। एक जरा इधर गौर से देखें इधर सारे। हाउ डू यू सी अ फॉर्मूला कि कहाँ फॉर्मूला लगा है, कहाँ फॉर्मूला नहीं लगा। एक्चुअली जिस भी बॉक्स को आप क्लिक करते हो उसमें यहां आके देखें, अगर तो कोई इस तरह की चीज आपको नजर आ रही है तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको एग्जैक्टली वही चीज नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स, ये 33 पे मैंने क्लिक किया है और ऊपर भी 33 आ रहा है, इफ इट इज द सेम इट इज अ वैल्यू टेक्स्ट, सीधा सीधा काम लिखा हुआ है, कोई इसमें ऐसा चक्कर नहीं। बट इफ यू सी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल यहां देखें, यहां क्या है, यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां 1 है सिंपल। सो इन सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इन सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला लगा क्या हुआ है ये देखना पड़ेगा। इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है C37 मल्टीप्लाई बाय V37। सो व्हाट इज C37? ऊपर से आप ABC देख रहे हैं, ये एक सेल है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, V37 के साथ। जी सर। ठीक। सो जी यहां जब हम चेंज करते हैं तो द सेम थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर रिक्वायर्ड एट ईच लेवल। इसी तरह अगर आप इसको देखोगे तो E37 मल्टीप्लाई बाय V37। तो इस सेल को हमने, या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सारे सेल्स है ना, इन सारे सेल्स में हमने क्या किया हुआ है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम यहां से मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, एक्सपेक्ट एम्प्लॉय नीडेड। समझ आई? इसको जरा अपने पास डिलीट करें इस सारे को और फॉर्मूला लगा के देखें। लीड फ्यूचर प्रेडिक्शन एक्शन कीपिंग एम्प्लॉइज नीडेड 1, और सबको जरा सबके साथ फॉर्मूला लगा के आप ड्रैग भी कर सकते हैं। एक चीज जरा सुने, अगर आपने यहां प्रेडिक्टर 1 पे ये फॉर्मूला सक्सेसफुली लगा लिया है, इट कैन बी डबल क्लिक्ड एंड उस सबको खुद ही रिप्लेस, आपकी जो कॉलम है उस पर खुद ब खुद उसको प्लेस कर देगा। सर ये नहीं सर, ये इसको मल्टीप्लाई करना है विद एम्प्लॉइज नीडेड, इसको मल्टीप्लाई करना है विद एम्प्लॉइज नीडेड, बिकॉज ये फिगर है व्हिच वी वांट, इफ वी चेंज इट तो हमें पीछे सारा कुछ डेटा चेंज हो जाए। ठीक हो गया सर, सही, ठीक है, बस ठीक हो गया, समझ गया सर, ठीक है, ये नहीं समझ, थैंक यू। नहीं, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए करना है बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। इसको प्लीज जरा एक्सरसाइज करें सारे। आप लोग खाने पीने के लिए ठीक है, बट वैसे अलग करें जरा। आप खा तो रहा है, काम को एक कर रहा है ना बंदा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू वर्क इंडिपेंडेंटली प्लीज। सर सर ये जो इसका आंसर है वो फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए। Employees needed को बाहर ही रखते हैं because that is the reference point, because previous